یقین کی طاقت۔ آغاز۔ یقین کی طاقت۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عارف نام کا لڑکا رہتا تھا۔ عارف ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹے کسان تھے۔ غربت، مشکلات اور تندرستی ان کے گھر کی پہچان تھی، لیکن عارف کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، جیسے وہ دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے، عارف، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سہولتیں، تم بڑے خواب کیسے دیکھ سکتے ہو؟ عارف مسکرا کر کہتا، خواب وہ نہیں جو رات کو سو کر دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میرا یقین پکا ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلا موڑ، مشکل امتحان۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ مایوس ہونے لگے۔ عارف کے والد بھی پریشان تھے۔ وہ روز عارف سے کہتے، بیٹا یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ مگر عارف کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، ابا جی ہم محنت کریں گے، دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا موڑ، یقین اور محنت۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں دن رات محنت شروع کر دی۔ لوگ اسے پاگل کہتے کہ بارش کے بغیر زمین کیا دے گی، مگر عارف کہتا، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اس کو اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے اوپر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ عارف اور اس کے والد کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ تیسرا موڑ، لوگوں کی سوچ بدلنا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عارف کے کھیت لہلہا رہے ہیں تو وہ اس کے پاس آئے اور کہا، ہمیں بھی سکھاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا۔ عارف نے مسکرا کر کہا، میں نے محنت کی لیکن سب سے بڑھ کر یقین رکھا۔ جب تمہارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دن سے گاؤں کے لوگوں نے بھی محنت اور دعا کے ساتھ یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ چوتھا موڑ، بڑی آزمائش۔ کچھ سال بعد عارف جوان ہوا۔ اس کے دل میں ایک اور خواب تھا کہ وہ گاؤں میں اسکول بنائے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ لوگ پھر مذاق اڑانے لگے، عارف، تمہارے پاس اسکول بنانے کے لیے زمین ہے نہ وسائل، یہ خواب چھوڑ دو۔ مگر عارف نے کہا، یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم شروع کیے۔ گاؤں کے درختوں کے نیچے بچوں کو پڑھانے لگا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بچے دن بعدن پڑھنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آ گئے۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول بن گیا۔ پانچواں موڑ، یقین کی جیت۔ وقت گزرتا گیا۔ وہی گاؤں جہاں لوگ مایوس رہتے تھے اب تعلیم اور محنت کی مثال بن گیا۔ عارف کے اسکول سے نکلنے والے بچے آگے جا کر بڑے شہروں میں کامیاب ہونے لگے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، بیٹا عارف، تم نے ہمارے گاؤں کو زندہ کر دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف نے مسکرا کر کہا، یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ چھٹا موڑ، آخری سبق۔ عارف کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر دن یہی سبق دیا کہ یقین بندے کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گاؤں کے بچوں سے کہا، یاد رکھو، غربت اور مشکلات تمہیں نہیں ہرا سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور محنت کرتے رہو، تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں لیکن یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ محنت کے ساتھ یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت اور تعلیم کے ذریعے یقین کا نور دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یقین کی طاقت، ایک نوجوان کی محنت اور بھروسے کی کہانی۔ دوست، یہ کہانی اب کے لیے تقریباً 1000 الفاظ پر مشتمل لکھی گئی ہے۔
या अब चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं, आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की? मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास न जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंगदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता हो। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते, आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलत है, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो? आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना।
जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन की जीत। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी अब के लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या अब चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं। आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की। मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास ना जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है।
आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंगदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता हो। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते, आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलतें, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो? आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन की जीत। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
اس نے اپنی زندگی کا ہر دن یہی سبق دیا کہ یقین بندے کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گاؤں کے بچوں سے کہا، یاد رکھو غربت اور مشکلات تمہیں نہیں ہرا سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور محنت کرتے رہو، تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں لیکن یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ محنت کے ساتھ یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت اور تعلیم کے ذریعے یقین کا نور دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یقین کی طاقت، ایک نوجوان کی محنت اور بھروسے کی کہانی۔ دوست، یہ کہانی اب کے لیے تقریباً 1000 الفاظ پر مشتمل لکھی گئی ہے۔ یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی کو بھی ڈرامائی انداز، مکالموں اور مناظر میں لکھ دوں تاکہ یہ ویڈیو تقریر کے لیے مزید مؤثر ہو جائے؟ والد پریشان لہجے میں، بیٹا عارف، یہ زمین اب کچھ نہیں دے گی، بارش نہیں ہو رہی، فصل سوکھ گئی ہے، شاید ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ پرعزم انداز میں، ابا جی، ہار ماننا کمزوروں کا کام ہے، ہم محنت کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ والد خاموش ہو جاتے ہیں، عارف کے چہرے پر اعتماد کی جھلک۔ گاؤں کے لوگ طنزیہ لہجے میں، پاگل ہو گیا ہے عارف، بارش کے بغیر زمین کیا اگائے گی؟ عارف مسکراتے ہوئے، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اگانا اللہ کا کام ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ کچھ دن بعد آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے۔ کیمرہ دکھاتا ہے کہ عارف کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ گاؤں والا، بیٹا عارف، تم نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ محنت کے ساتھ یقین رکھا۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہو کہ اللہ مدد کرے گا تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ لوگ سر ہلاتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے، عارف، اسکول بنانے کے خواب چھوڑ دو، تمہارے پاس نہ زمین ہے نہ پیسہ۔ عارف پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ، یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول تیار ہو جاتا ہے۔ بزرگ گاؤں والا جذباتی لہجے میں، عارف بیٹا، تم نے ہمارے گاؤں کو بدل دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے، یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، غربت اور مشکلات تمہیں ہرا نہیں سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور محنت کرو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ کیمرہ آسمان کی طرف الفاٹتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر پھیل رہی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پیغام آخر، یہ ڈرامائی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یقین کے بغیر محنت ادھوری ہے۔ یقین انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی قوت ہے۔ یقین کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی کہانی۔ یقین کی طاقت۔ آغاز، یقین کی طاقت۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عارف نام کا لڑکا رہتا تھا۔ عارف ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد ایک چھوٹے کسان تھے۔ غربت، مشکلات اور تندرستی ان کے گھر کی پہچان تھی، لیکن عارف کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، جیسے وہ دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے، عارف، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سہولتیں، تم بڑے خواب کیسے دیکھ سکتے ہو؟ عارف مسکرا کر کہتا، خواب وہ نہیں جو رات کو سو کر دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میرا یقین پکا ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلا موڑ، مشکل امتحان۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ مایوس ہونے لگے۔ عارف کے والد بھی پریشان تھے، وہ روز عارف سے کہتے،
بیٹا یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ مگر عارف کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، ابا جی ہم محنت کریں گے، دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا موڑ، یقین اور محنت۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں دن رات محنت شروع کر دی۔ لوگ اسے پاگل کہتے کہ بارش کے بغیر زمین کیا دے گی، مگر عارف کہتا، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اس کو اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے اوپر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ عارف اور اس کے والد کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ تیسرا موڑ، لوگوں کی سوچ بدلنا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عارف کے کھیت لہلہا رہے ہیں تو وہ اس کے پاس آئے اور کہا، ہمیں بھی سکھاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا۔ عارف نے مسکرا کر کہا، میں نے محنت کی لیکن سب سے بڑھ کر یقین رکھا۔ جب تمہارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دن سے گاؤں کے لوگوں نے بھی محنت اور دعا کے ساتھ یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ چوتھا موڑ، بڑی آزمائش۔ کچھ سال بعد عارف جوان ہوا۔ اس کے دل میں ایک اور خواب تھا کہ وہ گاؤں میں اسکول بنائے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ لوگ پھر مذاق اڑانے لگے، عارف تمہارے پاس اسکول بنانے کے لیے زمین ہے نہ وسائل، یہ خواب چھوڑ دو۔ مگر عارف نے کہا، یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم شروع کیے۔ گاؤں کے درختوں کے نیچے بچوں کو پڑھانے لگا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بچے دن بعدن پڑھنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آ گئے۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول بن گیا۔ پانچواں موڑ، یقین کی جیت۔ وقت گزرتا گیا۔ وہی گاؤں جہاں لوگ مایوس رہتے تھے اب تعلیم اور محنت کی مثال بن گیا۔ عارف کے اسکول سے نکلنے والے بچے آگے جا کر بڑے شہروں میں کامیاب ہونے لگے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، بیٹا عارف تم نے ہمارے گاؤں کو زندہ کر دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف نے مسکرا کر کہا، یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ چھٹا موڑ، آخری سبق۔ عارف کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر دن یہی سبق دیا کہ یقین بندے کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گاؤں کے بچوں سے کہا، یاد رکھو غربت اور مشکلات تمہیں نہیں ہرا سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور محنت کرتے رہو، تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں لیکن یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ محنت کے ساتھ یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت اور تعلیم کے ذریعے یقین کا نور دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یقین کی طاقت، ایک نوجوان کی محنت اور بھروسے کی کہانی۔ دوست، یہ کہانی اب کے لیے تقریباً 1000 الفاظ پر مشتمل لکھی گئی ہے۔ یا اب چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی کو بھی ڈرامائی انداز، مکالموں اور مناظر میں لکھ دوں تاکہ یہ ویڈیو تقریر کے لیے مزید مؤثر ہو جائے۔ والد پریشان لہجے میں، بیٹا عارف، یہ زمین اب کچھ نہیں دے گی، بارش نہیں ہو رہی، فصل سوکھ گئی ہے، شاید ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ پرعزم انداز میں، ابا جی، ہار ماننا کمزوروں کا کام ہے، ہم محنت کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ والد خاموش ہو جاتے ہیں، عارف کے چہرے پر اعتماد کی جھلک۔ گاؤں کے لوگ طنزیہ لہجے میں، پاگل ہو گیا ہے عارف، بارش کے بغیر زمین کیا اگائے گی؟ عارف مسکراتے ہوئے، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ کچھ دن بعد آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے۔ کیمرہ دکھاتا ہے کہ عارف کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے ہیں۔
एक बुजुर्ग गांव वाला। बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की? मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास ना जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंगदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता हो। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते, आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलतें, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो? आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा, ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी, हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा।
लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। 5वां मोड़, यकीन कीजिए। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। 6वां मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी अब के लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या अब चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं, आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की। मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास ना जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था।
عارف ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد ایک چھوٹے کسان تھے۔ غربت، مشکلات اور تندرستی ان کے گھر کی پہچان تھی، لیکن عارف کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، جیسے وہ دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے، عارف، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سہولتیں، تم بڑے خواب کیسے دیکھ سکتے ہو؟ عارف مسکرا کر کہتا، خواب وہ نہیں جو رات کو سو کر دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میرا یقین پکا ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلا موڑ، مشکل امتحان۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ مایوس ہونے لگے۔ عارف کے والد بھی پریشان تھے، وہ روز عارف سے کہتے، بیٹا یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ مگر عارف کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، ابا جی ہم محنت کریں گے، دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا موڑ، یقین اور محنت۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں دن رات محنت شروع کر دی۔ لوگ اسے پاگل کہتے کہ بارش کے بغیر زمین کیا دے گی، مگر عارف کہتا، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اس کو اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے اوپر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ عارف اور اس کے والد کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے، گاؤں والے حیران رہ گئے۔ تیسرا موڑ، لوگوں کی سوچ بدلنا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عارف کے کھیت لہلہا رہے ہیں تو وہ اس کے پاس آئے اور کہا، ہمیں بھی سکھاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا۔ عارف نے مسکرا کر کہا، میں نے محنت کی لیکن سب سے بڑھ کر یقین رکھا۔ جب تمہارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دن سے گاؤں کے لوگوں نے بھی محنت اور دعا کے ساتھ یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ چوتھا موڑ، بڑی آزمائش۔ کچھ سال بعد عارف جوان ہوا۔ اس کے دل میں ایک اور خواب تھا کہ وہ گاؤں میں اسکول بنائے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ لوگ پھر مذاق اڑانے لگے، عارف، تمہارے پاس اسکول بنانے کے لیے زمین ہے نہ وسائل، یہ خواب چھوڑ دو۔ مگر عارف نے کہا، یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم شروع کیے، گاؤں کے درختوں کے نیچے بچوں کو پڑھانے لگا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بچے دن با دن پڑھنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آ گئے۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول بن گیا۔ پانچواں موڑ، یقین کی جیت۔ وقت گزرتا گیا، وہی گاؤں جہاں لوگ مایوس رہتے تھے اب تعلیم اور محنت کی مثال بن گیا۔ عارف کے اسکول سے نکلنے والے بچے آگے جا کر بڑے شہروں میں کامیاب ہونے لگے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، بیٹا عارف، تم نے ہمارے گاؤں کو زندہ کر دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف نے مسکرا کر کہا، یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ چھٹا موڑ، آخری سبق۔ عارف کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر دن یہی سبق دیا کہ یقین بندے کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گاؤں کے بچوں سے کہا، یاد رکھو، غربت اور مشکلات تمہیں نہیں ہرا سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور محنت کرتے رہو، تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں لیکن یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ محنت کے ساتھ یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت اور تعلیم کے ذریعے یقین کا نور دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یقین کی طاقت، ایک نوجوان کی محنت اور بھروسے کی کہانی۔ دوست، یہ کہانی اب کے لیے تقریباً 1000 الفاظ پر مشتمل لکھی گئی ہے۔ یا اب چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی کو بھی ڈرامائی انداز، مکالموں اور مناظر میں لکھ دوں تاکہ یہ ویڈیو تقریر کے لیے مزید مؤثر ہو جائے۔ والد پریشان لہجے میں، بیٹا عارف،
ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं, आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की? मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास ना जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंगदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते, आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलत है, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो? आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा, ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी, हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे। अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा।
जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद बखुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन की जीत। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी अब के लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं। आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की। मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास ना जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो,
गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता हो। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते, आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलतें, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो? आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन की जीत। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती।
असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी आपके लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं, आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की? मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास न जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंगदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता हो। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते, आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलतें, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो? आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दें। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा, ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी, हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे। अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा।
दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन की जीत। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी अब के लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या अब चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं। आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की। मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं।
लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास ना जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया, ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती, असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंगदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता हो। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते, आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलतें, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो। आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दे। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा, ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी, हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन की जीत। वक्त गुजरता गया।
वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी अब के लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं, आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की? मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास न जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी। यकीन की ताकत। आगाज। यकीन की ताकत। एक छोटे से कस्बे में आरिफ नाम का लड़का रहता था। आरिफ एक आम घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद एक छोटे किसान थे। गुर्बत, मुश्किलात और तंगदस्ती उनके घर की पहचान थी। लेकिन आरिफ की आंखों में हमेशा एक चमक होती, जैसे वो दुनिया को बदलने के ख्वाब देखता हो। गांव के लोग अक्सर इस पर हंसते और कहते,
आरिफ, तुम्हारे पास ना पैसा है ना सहूलतें, तुम बड़े ख्वाब कैसे देख सकते हो? आरिफ मुस्करा कर कहता, ख्वाब वो नहीं जो रात को सोकर देखे जाएं, ख्वाब वो हैं जो इंसान को सोने ना दे। और मैं जानता हूं कि अगर मेरा यकीन पक्का है तो अल्लाह मेरे साथ है। पहला मोड़, मुश्किल इम्तिहान। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया, लोग मायूस होने लगे। आरिफ के वालिद भी परेशान थे। वो रोज आरिफ से कहते, बेटा ये हालात ठीक नहीं होंगे, हमें हार मान लेनी चाहिए। मगर आरिफ का जवाब हमेशा एक ही होता, अब्बा जी हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और यकीन रखेंगे, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। दूसरा मोड़, यकीन और मेहनत। आरिफ ने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसने अपने बाप के साथ खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी। लोग इसे पागल कहते कि बारिश के बगैर जमीन क्या देगी, मगर आरिफ कहता, बीज डालना मेरा काम है, इसको उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे, आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन की जीत। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया, ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्करा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती, असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी अब के लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या अब चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी, बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। और अज़म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है,
ہم محنت کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ والد خاموش ہو جاتے ہیں، عارف کے چہرے پر اعتماد کی جھلک۔ گاؤں کے لوگ طنزیہ لہجے میں، پاگل ہو گیا ہے عارف، بارش کے بغیر زمین کیا اگائے گی؟ عارف مسکراتے ہوئے، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ کچھ دن بعد آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے۔ کیمرہ دکھاتا ہے کہ عارف کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ گاؤں والا، بیٹا عارف، تم نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ محنت کے ساتھ یقین رکھا۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہو کہ اللہ مدد کرے گا تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ لوگ سر ہلاتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے، عارف، اسکول بنانے کے خواب چھوڑ دو، تمہارے پاس نہ زمین ہے نہ پیسہ۔ عارف پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ، یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول تیار ہو جاتا ہے۔ بزرگ گاؤں والا جذباتی لہجے میں، عارف بیٹا، تم نے ہمارے گاؤں کو بدل دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے، یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، غربت اور مشکلات تمہیں ہرا نہیں سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور محنت کرو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ کیمرہ آسمان کی طرف الفاٹتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر پھیل رہی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پیغام آخر، یہ ڈرامائی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یقین کے بغیر محنت ادھوری ہے۔ یقین انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی قوت ہے۔ یقین کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی کہانی۔ یقین کی طاقت۔ آغاز، یقین کی طاقت۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عارف نام کا لڑکا رہتا تھا۔ عارف ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد ایک چھوٹے کسان تھے۔ غربت، مشکلات اور تندرستی ان کے گھر کی پہچان تھی، لیکن عارف کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، جیسے وہ دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے، عارف، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سہولتیں، تم بڑے خواب کیسے دیکھ سکتے ہو؟ عارف مسکرا کر کہتا، خواب وہ نہیں جو رات کو سو کر دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر میرا یقین پکا ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلا موڑ، مشکل امتحان۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ مایوس ہونے لگے۔ عارف کے والد بھی پریشان تھے، وہ روز عارف سے کہتے، بیٹا یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ مگر عارف کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، ابا جی ہم محنت کریں گے، دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا موڑ، یقین اور محنت۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں دن رات محنت شروع کر دی۔ لوگ اسے پاگل کہتے کہ بارش کے بغیر زمین کیا دے گی، مگر عارف کہتا، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اس کو اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے اوپر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ عارف اور اس کے والد کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ تیسرا موڑ، لوگوں کی سوچ بدلنا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عارف کے کھیت لہلہا رہے ہیں تو وہ اس کے پاس آئے اور کہا، ہمیں بھی سکھاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا۔ عارف نے مسکرا کر کہا، میں نے محنت کی لیکن سب سے بڑھ کر یقین رکھا۔ جب تمہارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دن سے گاؤں کے لوگوں نے بھی محنت اور دعا کے ساتھ یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ چوتھا موڑ، بڑی آزمائش۔
کچھ سال بعد عارف جوان ہوا۔ اس کے دل میں ایک اور خواب تھا کہ وہ گاؤں میں اسکول بنائے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ لوگ پھر مذاق اڑانے لگے، عارف تمہارے پاس اسکول بنانے کے لیے زمین ہے نہ وسائل، یہ خواب چھوڑ دو۔ مگر عارف نے کہا، یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم شروع کیے، گاؤں کے درختوں کے نیچے بچوں کو پڑھانے لگا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بچے دن بعدن پڑھنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آ گئے۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول بن گیا۔ 5واں موڑ، یقین کیجیے، وقت گزرتا گیا۔ وہی گاؤں جہاں لوگ مایوس رہتے تھے اب تعلیم اور محنت کی مثال بن گیا۔ عارف کے اسکول سے نکلنے والے بچے آگے جا کر بڑے شہروں میں کامیاب ہونے لگے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا، بیٹا عارف تم نے ہمارے گاؤں کو زندہ کر دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف نے مسکرا کر کہا، یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ 6واں موڑ، آخری سبق۔ عارف کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر دن یہی سبق دیا کہ یقین بندے کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گاؤں کے بچوں سے کہا، یاد رکھو غربت اور مشکلات تمہیں نہیں ہرا سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور محنت کرتے رہو، تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں لیکن یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ محنت کے ساتھ یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت اور تعلیم کے ذریعے یقین کا نور دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یقین کی طاقت، ایک نوجوان کی محنت اور بھروسے کی کہانی۔ دوست، یہ کہانی اب کے لیے تقریباً 1000 الفاظ پر مشتمل لکھی گئی ہے۔ یا اب چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی کو بھی ڈرامائی انداز، مکالموں اور مناظر میں لکھ دوں تاکہ یہ ویڈیو تقریر کے لیے مزید مؤثر ہو جائے۔ والد پریشان لہجے میں، بیٹا عارف، یہ زمین اب کچھ نہیں دے گی، بارش نہیں ہو رہی، فصل سوکھ گئی ہے، شاید ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ پرعزم انداز میں، ابا جی، ہار ماننا کمزوروں کا کام ہے، ہم محنت کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ والد خاموش ہو جاتے ہیں، عارف کے چہرے پر اعتماد کی جھلک۔ گاؤں کے لوگ طنزیہ لہجے میں، پاگل ہو گیا ہے عارف، بارش کے بغیر زمین کیا اگائے گی؟ عارف مسکراتے ہوئے، بیج ڈالنا میرا کام ہے، اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ کچھ دن بعد آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے۔ کیمرہ دکھاتا ہے کہ عارف کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ گاؤں والا، بیٹا عارف، تم نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ محنت کے ساتھ یقین رکھا۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہو کہ اللہ مدد کرے گا تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ لوگ سر ہلاتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے، عارف اسکول بنانے کے خواب چھوڑ دو، تمہارے پاس نہ زمین ہے نہ پیسہ۔ عارف پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ، یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول تیار ہو جاتا ہے۔ بزرگ گاؤں والا جذباتی لہجے میں، عارف بیٹا، تم نے ہمارے گاؤں کو بدل دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے، یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، غربت اور مشکلات تمہیں ہرا نہیں سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور محنت کرو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ کیمرہ آسمان کی طرف الفاٹتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر پھیل رہی ہے۔
اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پیغام آخر: یہ ڈرامائی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یقین کے بغیر محنت ادھوری ہے۔ یقین انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی قوت ہے۔ یقین کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی کہانی۔ یقین کی طاقت۔ آغاز: یقین کی طاقت۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عارف نام کا لڑکا رہتا تھا۔ عارف ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد ایک چھوٹے کسان تھے۔ غربت، مشکلات اور تندرستی ان کے گھر کی پہچان تھی، لیکن عارف کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، جیسے وہ دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے: عارف، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سہولتیں، تم بڑے خواب کیسے دیکھ سکتے ہو؟ عارف مسکرا کر کہتا: خواب وہ نہیں جو رات کو سو کر دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر میرا یقین پکا ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلا موڑ: مشکل امتحان۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا۔ کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ مایوس ہونے لگے۔ عارف کے والد بھی پریشان تھے۔ وہ روز عارف سے کہتے: بیٹا، یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ مگر عارف کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا: ابا جی، ہم محنت کریں گے، دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا موڑ: یقین اور محنت۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں دن رات محنت شروع کر دی۔ لوگ اسے پاگل کہتے کہ بارش کے بغیر زمین کیا دے گی، مگر عارف کہتا: بیج ڈالنا میرا کام ہے، اس کو اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ کچھ ہی دنوں بعد گاؤں کے اوپر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ عارف اور اس کے والد کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ تیسرا موڑ: لوگوں کی سوچ بدلنا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عارف کے کھیت لہلہا رہے ہیں تو وہ اس کے پاس آئے اور کہا: ہمیں بھی سکھاؤ کہ تم نے یہ کیسے کیا۔ عارف نے مسکرا کر کہا: میں نے محنت کی، لیکن سب سے بڑھ کر یقین رکھا۔ جب تمہارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اس دن سے گاؤں کے لوگوں نے بھی محنت اور دعا کے ساتھ یقین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا شروع کر دیا۔ چوتھا موڑ: بڑی آزمائش۔ کچھ سال بعد عارف جوان ہوا۔ اس کے دل میں ایک اور خواب تھا کہ وہ گاؤں میں اسکول بنائے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر آگے بڑھ سکیں، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ لوگ پھر مذاق اڑانے لگے: عارف، تمہارے پاس اسکول بنانے کے لیے زمین ہے نہ وسائل، یہ خواب چھوڑ دو۔ مگر عارف نے کہا: یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ اس نے چھوٹے چھوٹے قدم شروع کیے۔ گاؤں کے درختوں کے نیچے بچوں کو پڑھانے لگا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے کہ بچے دن بعدن پڑھنے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آ گئے۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول بن گیا۔ پانچواں موڑ: یقین کی جیت۔ وقت گزرتا گیا۔ وہی گاؤں جہاں لوگ مایوس رہتے تھے اب تعلیم اور محنت کی مثال بن گیا۔ عارف کے اسکول سے نکلنے والے بچے آگے جا کر بڑے شہروں میں کامیاب ہونے لگے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے کہا: بیٹا عارف، تم نے ہمارے گاؤں کو زندہ کر دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف نے مسکرا کر کہا: یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ چھٹا موڑ: آخری سبق۔ عارف کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر دن یہی سبق دیا کہ یقین بندے کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے آخری دن گاؤں کے بچوں سے کہا: یاد رکھو، غربت اور مشکلات تمہیں نہیں ہرا سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اللہ پر یقین رکھو اور محنت کرتے رہو، تم وہ سب حاصل کر لو گے جس کا لوگ تصور بھی نہیں کرتے۔ نتیجہ: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات آتی ہیں لیکن یقین انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔
محنت کے ساتھ یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی خدمت اور تعلیم کے ذریعے یقین کا نور دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ یقین کی طاقت، ایک نوجوان کی محنت اور بھروسے کی کہانی۔ دوست، یہ کہانی اب کے لیے تقریباً 1000 الفاظ پر مشتمل لکھی گئی ہے۔ یا اب چاہتے ہیں کہ میں اس کہانی کو بھی ڈرامائی انداز، مکالموں اور مناظر میں لکھ دوں تاکہ یہ ویڈیو تقریر کے لیے مزید مؤثر ہو جائے۔ والد پریشان لہجے میں: بیٹا عارف، یہ زمین اب کچھ نہیں دے گی۔ بارش نہیں ہو رہی، فصل سوکھ گئی ہے۔ شاید ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ پرعزم انداز میں: ابا جی، ہار ماننا کمزوروں کا کام ہے۔ ہم محنت کریں گے اور یقین رکھیں گے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ والد خاموش ہو جاتے ہیں، عارف کے چہرے پر اعتماد کی جھلک۔ گاؤں کے لوگ طنزیہ لہجے میں: پاگل ہو گیا ہے عارف، بارش کے بغیر زمین کیا اگائے گی؟ عارف مسکراتے ہوئے: بیج ڈالنا میرا کام ہے، اگانا اللہ کا کام ہے۔ میرا یقین ہے کہ اللہ محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ کچھ دن بعد آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے۔ کیمرہ دکھاتا ہے کہ عارف کے کھیت سب سے پہلے سرسبز ہو گئے ہیں۔ ایک بزرگ گاؤں والا: بیٹا عارف، تم نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ محنت کے ساتھ یقین رکھا۔ جب انسان کا یقین مضبوط ہو کہ اللہ مدد کرے گا تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ لوگ سر ہلاتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ مذاق اڑاتے ہوئے: عارف، اسکول بنانے کے خواب چھوڑ دو، تمہارے پاس نہ زمین ہے نہ پیسہ۔ عارف پراعتماد مسکراہٹ کے ساتھ: یقین رکھنے والے خواب نہیں چھوڑتے، وہ خواب کو حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ اس کی محنت دیکھ کر مدد کے لیے آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک چھوٹا سا اسکول تیار ہو جاتا ہے۔ بزرگ گاؤں والا جذباتی لہجے میں: عارف بیٹا، تم نے ہمارے گاؤں کو بدل دیا، یہ سب تمہارے یقین کی طاقت ہے۔ عارف آنسوؤں کے ساتھ مسکراتے ہوئے: یہ میری طاقت نہیں، یہ یقین کی طاقت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، غربت اور مشکلات تمہیں ہرا نہیں سکتی، اصل طاقت تمہارے یقین میں ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور محنت کرو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ کیمرہ آسمان کی طرف الفاٹتا ہے، سورج کی روشنی زمین پر پھیل رہی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ پیغام آخر: یہ ڈرامائی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ یقین کے بغیر محنت ادھوری ہے۔ یقین انسان کو ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی قوت ہے۔ یقین کی طاقت، ناممکن کو ممکن بنانے کی کہانی۔ یقین کی طاقت۔ آغاز: یقین کی طاقت۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں عارف نام کا لڑکا رہتا تھا۔ عارف ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد ایک چھوٹے کسان تھے۔ غربت، مشکلات اور تندرستی ان کے گھر کی پہچان تھی۔ لیکن عارف کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک ہوتی، جیسے وہ دنیا کو بدلنے کے خواب دیکھتا ہو۔ گاؤں کے لوگ اکثر اس پر ہنستے اور کہتے: عارف، تمہارے پاس نہ پیسہ ہے نہ سہولت ہے، تم بڑے خواب کیسے دیکھ سکتے ہو؟ عارف مسکرا کر کہتا: خواب وہ نہیں جو رات کو سو کر دیکھے جائیں، خواب وہ ہیں جو انسان کو سونے نہ دیں۔ اور میں جانتا ہوں کہ اگر میرا یقین پکا ہے تو اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلا موڑ: مشکل امتحان۔ ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، اناج ختم ہو گیا، لوگ مایوس ہونے لگے۔ عارف کے والد بھی پریشان تھے۔ وہ روز عارف سے کہتے: بیٹا، یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمیں ہار مان لینی چاہیے۔ مگر عارف کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا: ابا جی، ہم محنت کریں گے، دعا کریں گے اور یقین رکھیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دوسرا موڑ: یقین اور محنت۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں دن رات محنت شروع کر دی۔ لوگ اسے پاگل کہتے کہ بارش کے بغیر زمین کیا دے گی، مگر عارف کہتا: بیج ڈالنا میرا کام ہے،
اس کو उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ ही दिनों बाद गांव के ऊपर बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। आरिफ और उसके वालिद के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। तीसरा मोड़, लोगों की सोच बदलना। जब लोगों ने देखा कि आरिफ के खेत लहलहा रहे हैं तो वो इसके पास आए और कहा, हमें भी सिखाओ कि तुमने ये कैसे किया। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने मेहनत की लेकिन सबसे बढ़कर यकीन रखा। जब तुम्हारे दिल में यकीन हो कि अल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करेगा तो रास्ते खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस दिन से गांव के लोगों ने भी मेहनत और दुआ के साथ यकीन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। चौथा मोड़, बड़ी आजमाइश। कुछ साल बाद आरिफ जवान हुआ। इसके दिल में एक और ख्वाब था कि वो गांव में स्कूल बनाए ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। लोग फिर मजाक उड़ाने लगे। आरिफ, तुम्हारे पास स्कूल बनाने के लिए जमीन है ना वसाइल, ये ख्वाब छोड़ दो। मगर आरिफ ने कहा, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते, वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। इसने छोटे छोटे कदम शुरू किए। गांव के दरख्तों के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग देखकर हैरान हुए कि बच्चे दिन ब दिन पढ़ने में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद कुछ नेक लोग इसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आ गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल बन गया। पांचवा मोड़, यकीन कीजिए। वक्त गुजरता गया। वही गांव जहां लोग मायूस रहते थे अब तालीम और मेहनत की मिसाल बन गया। आरिफ के स्कूल से निकलने वाले बच्चे आगे जाकर बड़े शहरों में कामयाब होने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा आरिफ, तुमने हमारे गांव को जिंदा कर दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुनिया की कोई ताकत इसको हरा नहीं सकती। छठा मोड़, आखिरी सबक। आरिफ की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इसने अपनी जिंदगी का हर दिन यही सबक दिया कि यकीन बंदे को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गांव के बच्चों से कहा, याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें नहीं हरा सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अल्लाह पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो, तुम वो सब हासिल कर लोगे जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं करते। नतीजा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलात आती हैं लेकिन यकीन इंसान को टूटने नहीं देता। मेहनत के साथ यकीन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरों की खिदमत और तालीम के जरिए यकीन का नूर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। यकीन की ताकत, एक नौजवान की मेहनत और भरोसे की कहानी। दोस्त, ये कहानी अब के लिए तकरीबन 1000 अल्फाज पर मुश्तमिल लिखी गई है। या अब चाहते हैं कि मैं इस कहानी को भी ड्रामाई अंदाज, मुकालमों और मनाजिर में लिख दूं ताकि ये वीडियो तकरीर के लिए मजीद मुअस्सिर हो जाए। वालिद परेशान लहजे में, बेटा आरिफ, ये जमीन अब कुछ नहीं देगी। बारिश नहीं हो रही, फसल सूख गई है। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। पुरअज़्म अंदाज में, अब्बा जी, हार मानना कमजोरों का काम है। हम मेहनत करेंगे और यकीन रखेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वालिद खामोश हो जाते हैं। आरिफ के चेहरे पर एतमाद की झलक। गांव के लोग तंजिया लहजे में, पागल हो गया है आरिफ, बारिश के बगैर जमीन क्या उगाएगी। आरिफ मुस्कुराते हुए, बीज डालना मेरा काम है, उगाना अल्लाह का काम है। मेरा यकीन है कि अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। कुछ दिन बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है। कैमरा दिखाता है कि आरिफ के खेत सबसे पहले सरसब्ज हो गए हैं। एक बुजुर्ग गांव वाला, बेटा आरिफ, तुमने कैसे कामयाबी हासिल की। मेहनत के साथ यकीन रखा। जब इंसान का यकीन मजबूत हो कि अल्लाह मदद करेगा तो रास्ते खुद बन जाते हैं। लोग सर हिलाते हैं और मुतासिर होते हैं। गांव के लोग मजाक उड़ाते हुए, आरिफ, स्कूल बनाने के ख्वाब छोड़ दो, तुम्हारे पास ना जमीन है ना पैसा। आरिफ पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ, यकीन रखने वाले ख्वाब नहीं छोड़ते।
वो ख्वाब को हकीकत में बदल देते हैं। कुछ नेक लोग उसकी मेहनत देखकर मदद के लिए आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा स्कूल तैयार हो जाता है। बुजुर्ग गांव वाला जज्बाती लहजे में, आरिफ बेटा, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। ये सब तुम्हारे यकीन की ताकत है। आरिफ आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए, ये मेरी ताकत नहीं, ये यकीन की ताकत है। अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। याद रखो, गुर्बत और मुश्किलात तुम्हें हरा नहीं सकती। असल ताकत तुम्हारे यकीन में है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कैमरा आसमान की तरफ अलिफाटेता है, सूरज की रोशनी जमीन पर फैल रही है और कहानी खत्म हो जाती है। पैगाम आखिर, ये ड्रामाई कहानी हमें सिखाती है कि यकीन के बगैर मेहनत अधूरी है। यकीन इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत देता है। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी कुव्वत है। यकीन की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कहानी।